Hello and welcome to the second lecture of fluorescence spectroscopy. In last lecture, we discussed on the basic part, introduction part of fluorescence, of phosphorus and luminescence part, then about the singlet state, then doublet state, triplet state, ground state. So, we discuss such a point, then we discuss about the absorption as well as emission, means difference between them also we discuss. Then we discuss on to the various factor which affect the fluorescence. Like first one is, just you must remember, you that is very important questions. So, first one is an nature, second one is the effect of functional groups, then effect of concentration, effect of oxygen, pH, temperature, viscosity, impurities, then intensity of the radiation. 9 one is the quenching, 10 one is the structure of molecules, 11 is the whatever the solutes which adsorb onto the cell wall, and finally molecular weight of compound. Okay. So, they might be shipped at any place, but these are the important one. Okay. So, one by one we have to be discussed in detail about factor affecting fluorescence, like here discussion to the factor affecting fluorescence, and then we have to be discuss about what is quenching, quenching क्यों होती है, quenching के type कौन से, means we have to know about its type, chemical, collision. Okay. So, everything we have to be discussed in the case of this. These are the objective of today's lecture. So, move toward the next. So, these are the 12 factors, that is nature of molecule, effect of functional groups, concentration, effect of oxygen, pH of solution, effect of temperature and viscosity, effect of impurities, uh, effect of intensity during radiation, chemical quenching, effect of structure of compound, adsorption of solute on cell wall, and finally molecular weight of compound, which is not able to seen, but here is an molecular weight of compound in the lower side is there. Okay. So, start with the first point, that is the nature of molecule. Okay. So, all the molecules cannot show the phenomena of fluorescence. Okay. सभी मॉलिक्यूल ने ये जो फ्लोरोसेंस जो क्या करेंगे, cannot show the phenomena of fluorescence, only the molecule. Okay. Okay. So, only the molecules absorb UV visible radiation, जो कि UV visible radiation absorb कर सकते हैं, can show this phenomena. Greater the absorbency of the molecule, the more intense its fluorescence. जितनी ज़्यादा उसकी greater the absorbency of molecule, the more intense its fluorescence. Then move toward the unsaturated molecules with pi bond. Unsaturated molecule with the pi bond and good resonance stability. Okay. जो कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, पाई बॉन्ड है एंड गुड रेजोनेंस स्टेबिलिटी, कैन एग्जिबिट फ्लोरोसेंस. वो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं फ्लोरोसेंस. एग्जाम्पल है अल्किन विथ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स, लाइक 1,3 ब्यूटाडाइन इज द अनदर एग्जाम्पल. वो क्या करते हैं कि गुड रेजोनेंस स्टेबिलिटी एंड फ्लोरोसेंस भी शोन करते हैं. और उसी चीज़ में अगर हम अपोजिट में देंगे, द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल विथ सिग्मा बॉन्ड, ओके, एन सिग्मा स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार. हमने पहले देखा है कि वो जो ना वट एवर द शिफ्ट्स आर देयर, सो दे आर नॉट बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइड्रोस्कोपिक शिफ्ट, हमने पहले देखा था. रेड शिफ्ट की जगह पे ब्लू शिफ्ट की तरफ जाते हैं. सो क्या करते हैं, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स विथ सिग्मा बॉन्ड डू नॉट एग्जिबिट द फ्लोरोसेंस. और अब सिग्मा बॉन्ड में क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है. सो एलिफैटिक एंड सैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक compounds like alkane which does not exhibit fluorescence, से कभी fluorescence exhibit नहीं करता. Then the second point comes effect of functional groups. So
whatever the functional groups are there, like whatever the NH2 group, OH group. Okay, so these are also called as the electronic donating groups. हम क्या बोलते हैं उसको, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हम उसको बोलते हैं. ओके, आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप. ओके, सो which enhance the fluorescence. We can take the example of NH2OH. Also there is a methoxy group. These are the kind of an example which are act like donating group or which act like electron releasing group, which enhance the fluorescence, बढ़ाते हैं. ओके, लेकिन उसी चीज़ में अगर हम अपोजिट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, डिक्रीज और डिस्ट्रॉय फ्लोरोसेंस. ओके, वो क्या करते हैं, डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द फ्लोरोसेंस. सो इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स. हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी. जैसे हमने डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स भी हम उसको बोलते हैं. वो क्या करते हैं जनरली, अब इसमें एग्जाम्पल अगर हमने देखा है COH ग्रुप, NO2 ग्रुप, N डबल बॉन्ड एंड ETC, तो क्या होता है कि ये जो एक्सेस ऑफ O है, एक्सेस ऑफ EN है और ये डबल बॉन्ड है, वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करने लगते हैं. और जैसे वो विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे डिस्ट्रॉय द फ्लोरोसेंस और डिक्रीज द फ्लोरोसेंस. ओके, हाई एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉम इंट्रोड्यूस इनटू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिक्रीज द फ्लोरोसेंस. देयर इज अनदर ड्रॉबैक इज देयर, that whatever the molecules are there, high atomic number, उनका अगर एटम है, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसका क्या है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, into a pi electron it decreases the fluorescence. So we require a lesser atomic number atoms or the molecules. Okay, so that is the things in the case of functional groups. Then molecular weight of कंपाउंड, एक ही सिंगल लाइन में एक्सप्लेन किया है. अ सब्सटेंस विथ हाई मोलिकुलर वेट, अ सब्सटेंस विथ हाई मोलिकुलर वेट इज रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ फ्लोरोसेंस. जितना ज़्यादा उसका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा उतना ही कम वो फ्लोरोसेंस देगा. सो दैट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड. ओके, हमने स्लाइड में उसको 12वें पॉइंट पे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट पे एक्सप्लेन किया है, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड. फोर्थ पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो इन द केस ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज ऑलवेज linear relationship between concentration of sample and fluorescence. Okay, but generally whatever the concentration that we require dilute one. So there is a linear relationship between the concentration of sample and fluorescence. In dilute solution, the radiation distributes uniformly and gives high intense fluorescence. अब यहाँ पे हमने डायग्राम है, यहाँ पे अगर हमने देखा है तो यहाँ पे डाइल्यूट किया वाला सोल्यूशन है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, सब्सटेंस जो है ना इक्वली मीन्स सभी जगह पे क्या हो रहे हैं, सब्सटेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और सेल के अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से रेडिएशन प्रॉपर्ली जा रहा है. लेकिन उसी चीज़ में अगर हमने क्या क्या रेडिएशन, अब यहाँ जो नीचे से हम रेडिएशन पास किए सबसे की तरफ जा रहे हैं. अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशन दिख रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में 90 के एंगल पे मूव होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटरिंग शो कर रहे हैं, फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं. सो इन द केस ऑफ एक्साइटेड रेडिएशन क्या होता है, अब अगर आपके पास क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, द लेयर वेयर इज एन हायर कॉन्सेंट्रेशन, माइट बी अपर लेयर, माइट बी लोअर लेयर. ओके, सो एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, वो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वो खुद की तरफ ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगेगी. दे एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट कम टूवर्ड देम, एंड लोअर लेयर ट्रांसफर लेयर रेडिएशन, और द अपर लेयर, अगर हमने ये डायग्राम दिखा है तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो एब्जॉर्ब करने के ऊपर जाने नहीं देगी, रेडिएशन बहुत ही कम जाएगी. देयर इज अ नो यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन रिजल्ट ऑफ फ्लोरोसेंस, और उसके वजह से फ्लोरोसेंस हमारा डिक्रीज होता है. सो रेडिएशन डिक्रीज होता है बिकॉज इट कांट पास टूवर्ड द लेसर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, and there is a no uniform absorption result of fluorescence. Okay, so remember this point
in the case of concentration. So फ्लोरोसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. फ्लोरोसेंस तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. ओके, एफ आई इज इक्वल टू क्यू इंटू आई बाय ए, वेयर एफ इज इक्वल टू क्यू आई ए सी टी. ओके, सो व्हाट इज क्यू? क्यू इज द कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस. क्यू इज द कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस. यहाँ पे भी यहाँ पे है. ठीक है, बाद में आई जीरो इट्स अ कांस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है? कांस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट है. उसके बाद ए सी टी मॉलिक्यूलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हम बोलते हैं, दैट इज ए. सी इज नथिंग बट द वट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस है. what is t? T is nothing but the path length. So f is equal to kc, where k is represent all constant. So finally if you get the results, f is equal fi directly proportional to c, means directly proportional to the concentration. But concentration कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए. इतनी याद रखना है. जब भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे रहेगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से प्रॉपर फ्लोरोसेंस नहीं मिलेगा. लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपरली डाइल्यूट किया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेडिएशन का, और उसकी वजह से हमें प्रॉपर फ्लोरोसेंस मिलेगा. दैट इज अबाउट द वट एवर द कॉन्सेंट्रेशन. देन द फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन, देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रिमेंबर दैट पॉइंट. ऑक्सीजन आप रखो तो फ्लोरोसेंस डिक्रीज करता है, कभी कभी बढ़ाता भी है. हमें वो एप्लीकेशन में स्टडी करना है. ओके, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस इनटू नॉन फ्लोरोसेंट्स. ये क्या करता है? उनका सीधे ऑक्सीडेशन कर लेता है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का नॉन फ्लोरोसेंट के इसमें कन्वर्ट कर लेता है. और इनडायरेक्टली ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोंचिंग. ओके, जैसे अभी हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन कोंचिंग, एक ही जगह पे बल्क होने लगता है, तो कोंचिंग की वजह से क्या होने लगता है कि इनडायरेक्टली हो जाता है. सो ड्यू टू द कोंचिंग, द डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंस कैन बी अवॉइडेड बाय. हमें अब क्या करना है कि ये डिक्रीज कर लेना है. हमें नहीं चाहिए डिक्रीज द फ्लोरोसेंस, कैन बी अवॉइडेड. हमें अवॉइड कैसे करेंगे हम इसको? बाय यूजिंग ऑक्सीजन फ्री. हमें उसमें ऑक्सीजन रखना है यूजिंग ऑक्सीजन फ्री सॉल्यूशंस. और कंपेयरिंग, अब आप या तो हम उसमें का रिजल्ट कितना अफेक्ट हो, व्हाट एवर द रिजल्ट दैट गेट अफेक्टेड, दैट वी हैव टू बी चेक. सो व्हाट वी डू, we take the results of two different solutions. In one case there is a presence of oxygen, in other case there is an absence of oxygen. हमने दोनों लिए हैं और दोनों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं. तो comparing result obtained in the presence of absence of oxygen, we get the results which shown that oxygen affect, how much is the oxygen is get affect. और जहाँ पे ऑक्सीजन फ्री रहेगा उसमें कोई भी फ्लोरोसेंस पे अफेक्ट नहीं होगा. सो दैट वी कैन चेक. The paramagnetic substance like dissolved oxygen and many transition metals with unpaired electron. ठीक है, एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सिंगलेट स्टेट है, एक्साइटेड की, लाइक डिजॉल्व ऑक्सीजन्स. ओके, उसमें लाइक डिजॉल्व ऑक्सीजन है एंड मेनी ट्रांजिशन मेटल्स. अदर एग्जांपल क्या लिए हमने? ट्रांजिशन मेटल्स विथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. उनके अंदर क्या है ऑलरेडी हमें पता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ड्रामेटिकली डिक्रीज फ्लोरोसेंस. वो क्या करता है? ड्रामेटिकली डिक्रीज फ्लोरोसेंस एंड कॉजेस इंटरफेरेंस इन फ्लोरोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस. और वो इंटरफेरेंस करने लगता है फ्लोरोमेट्रिक डिटर्मिनेशन के लिए. दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीजन इमिशन. और वो जो एक्साइटेशन होता है वो, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली इट इज एन ऑक्सीजन इमिशन, नॉट द फॉस्फोरेंस. उसको हम फॉस्फोरेंस नहीं बोलते. देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल, हम उसको एडवाइजेबल भी बोलते हैं कि मेक फॉस्फोरेंस मेजरमेंट इन द अब्सेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. फॉस्फोरेंस के हम जब भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही हम इसको स्टडी करेंगे. सो दैट इज वेरी इफेक्टिव, मीन्स ऑक्सीजन इज वेरी dangerous one. So we try to avoid the oxygen while taking the studies. Then there is an effect of pH of solution. ठीक है, so effect of pH of solutions, so depend on the acidity or alkalinity. We know acidity means what? pH 4 के नीचे रहेगी और lesser than 7. Alkalinity means what? From 5 to
8, 7, 8 something alkalinity is there of the medium, it undergoes ionized or unionized. एक तो particular charge हो गया और unionized हो गया, hence can be fluorescent substance or non-fluorescence. If they are ionized, they become fluorescence, or then not, then they are non-fluorescence. So that depends upon the acidity और alkalinity of the medium. Acidity shown कर रहा है, alkalinity नहीं कर रहा है. So that directly depends upon the whatever the acidity or alkalinity of the medium is there. Take the example. Phenol is neutral and alkaline medium. अगर हमने फिनॉल लिया है और सॉल्यूशन एक तो न्यूट्रल लिया है एंड अल्कलाइन लिया है, ठीक है, मीडियम अंडरगोज आयोनाइजेशन, ये क्या करते हैं, आयोनाइजेशन देते हैं एंड गिव वीक फ्लोरोसेंस. लेकिन फ्लोरोसेंस कैसा मिलता है हमें, वीक फ्लोरोसेंस मिलता है. ओके, वेयर एज एसिडिक मीडियम इट इज आयोनाइज एंड गिव इंटेंस फ्लोरोसेंस. लेकिन वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, अगर उसमें एसिडिक मीडियम में क्या किया है, एसिडिक मीडियम में ऐड किया है तो इट इज आयोनाइज्ड एंड गिव इंटेंस फ्लोरोसेंस. सो दैट इज because of the different pH of the solutions. So pH of solution also play very vital and important role. Then effect of temperature and viscosity. So in the case of temperature viscosity, increase in temperature may result in increase in concentration. ठीक है, अगर हमने उसको हीट किया, हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत सारा बल्क है वो एक ही जगह पे जमा होगा, और बल्क जमा होने की वजह से हमने पहले ही पता है कि कॉन्सेंट्रेशन के वक्त स्टडी किया है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर एक जगह पे बढ़ेगा तो उसका रेडिएशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और वो रिजल्ट अफेक्ट करने लगेगा हमें. एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन विस्कोसिटी, आपके पास एक विस्कोस सोल्यूशन है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी रिजल्ट इन इंट्रामोलिकुलर कोलिजन. हमें एक तो टेम्परेचर कम चाहिए और ज़्यादा विस्कोसिटी चाहिए. इफ that viscosity is decreased, result in intermolecular, in between the molecules there is a collision takes place and deactivation of excited molecule. अब उनके बीच में खुद के इसमें collision होने लगेगा, there is a takes place a collision between among themselves, that's why they can't go toward the excited state and it is excited molecule by distorting fluorescence. So deactivation of excited molecule by distorting fluorescence takes place. ठीक है, बाद में the 8th point is there, that is effect of impurities. So substance other than solid molecules, अब impurity means क्या है, foreign material कुछ रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगी, ठीक है. So anything that comes in that practically a substance other than solid molecule are impurities and exhibit fluorescence quenching, और वो क्या करते हैं, fluorescence quenching करते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल इज आयोडीन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव quenchers. अगर हमने उसमें का एडिशन किया है तो ये हमें फ्लोरोसेंस के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है. आयोडीन आयन एज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव quenchers. ओके, देन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. सो रेडिएशन ऑफ एडिक्वेट इंटेंसिटी, हमने क्या किया है, रेडिएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन पास कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा इंटेंस नहीं चाहिए. रेडिएशन ऑफ एडिक्वेट इंटेंसिटी मस्ट बी यूज्ड टू इंड्यूस फ्लोरोसेंस. हमें जितनी चाहिए उतनी इंसिडेंट रेडिएशन हम पास करेंगे, उतनी इंटेंसिटी का राइज पड़ेंगे. हाई इंटेंस रेडिएशन मे कॉज डिक्रीज इन फ्लोरोसेंस. अगर हमने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन यूज़ किया, दे डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंस ड्यू टू फोटोकेमिकल चेंजेस, बिकॉज सच ए इंटेंस रेडिएशन कॉजेज द फोटोकेमिकल चेंजेस, और जिसके वजह से आपके रिजल्ट के ऊपर वो अफेक्ट करने लगेगा. About 20% of energy can be estimated. High intense radiation is used. जो excess of energy है, generally 20% of result is faulty because of that intense radiation. So be aware of that one. About 20% of energy can be estimated. High intense radiation is used. 20% हम उससे ज़्यादा ही radiation use करते हैं. Then there is a chemical quenching. So chemical quenching is a very simple concept. Just pay your attention towards here that it can be occur by two ways. ये दो वे से होता है. There is an collision type or excited molecule transfer its fluorescent intensity. Ground state to excited state चला गया, वो क्या करने लगा है, transfer its fluorescent intensity to surrounding molecules. जैसे surrounding molecule को ट्रांसफर करने और इंटेंसिटी ट्रांसफर कर लगता है,
the surrounded molecular ions or impurity by intercollision, उनके अंदर क्या हो गया, इंटरकोलिजन होने लगता है, एंड दे डिस्ट्रॉय द फ्लोरोसेंस. अब रिमेंबर, एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने क्या किया है, ट्रांसफर इट फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी टू सराउंडिंग, उसने सराउंडिंग को भेज दिया. मॉलिकुलर आयंस और इम्प्योरिटी intensity to surrounded molecules, ions or impurity by intercollision they destroy fluorescence. उनके बीच में जो intercollision होगा ना, that destroy करेगा वो fluorescence. और उसके साथ ही इन अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, अब आपके पास तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ठीक है, लेकिन कभी कभी मिक्सचर रहेगा उसमें के कुछ मॉलिक्यूल एटम रहेंगे वो अनएक्साइटेड रहेंगे, उनको एक्साइटेशन ही नहीं है, कन्वर्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड. इट में फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वो क्या करने लगते हैं, खुद का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने लगते हैं with adequate molecule, okay, stable complex with quenching molecules and inhibiting the excitation and fluorescence. So unexcited molecules forms a stable complex with quenching molecules, जो quenching molecule है उनके साथ वो क्या करेगा, complex form करेंगे and inhibiting the excitation and fluorescence. वो excitation भी नहीं होने देंगे और fluorescence भी नहीं होने देंगे. So that is this one, chemical quenching. Then whatever the nature of molecules, okay, so one thing, सिंगल बिंग रहे डबल बिंग रहे कितना भी रहे, जनरली वो फ्लोरोसेंस बढ़ते रहेगा, अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो फ्लोरोसेंस बढ़ेगा, इतनी ही चीज़ याद रखना है. कंपाउंड विथ फ्यूज्ड रिंग, कंपाउंड विथ फ्यूज्ड रिंग आर फाउंड टू बी स्पेशली फ्लोरोसेंस, अगर उसके अंदर फ्यूज रिंग है, आर फाउंड टू बी स्पेशली फ्लोरोसेंस, एंड द एक्सटेंट ऑफ फ्लोरोसेंस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिंग इन अ मॉलिक्यूल. जितनी ज़्यादा रिंग रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस शो करेगा, इतना याद रखना है. द स्ट्रक्चर रिजिडिटी इन अ मॉलिक्यूल फेवर फ्लोरोसेंस, उसके अंदर अगर कुछ रिजिडिटी रहेगी तो भी वो फ्लोरोसेंस को ही फ्लेवर क्या करेगा, फ्लोरोसेंस की तरफ भी चला जाएगा, हायर फ्लोरोसेंस से देगा, उसकी तरफ भी फेवर करेगा वो. एलिफेटिक एंड असाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड, एलिफेटिक और असाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स और हाईली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आल्सो शोज द फ्लोरोसेंस. अगर वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अगर ज़्यादा रहेंगे, सो सच स्ट्रक्चर आल्सो शोज द फ्लोरोसेंस, वो भी हमें क्या करेगा, फ्लोरोसेंस शो करेगा. एग्जाम्पल फ्लोरोसेंस, फ्लोप्थलीन्स, फ्लोरीन, देन 5-phenyl. So such a kind of examples comes under this one, that is the nature of molecule. Okay, but instead of this nature of molecules, actually the one word comes is effect of structure of molecules. Here what becomes, the whatever the effect is there, that effect of, because we already nature of molecule हमने वैसे स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट गिव्स द बेटर हेडिंग टू दिस वन. देन एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट ऑन सेल वॉल. अब आपने क्यूएट के अंदर सोल्यूशन ऐड कर लिया, लेकिन आपने अगर एक सोल्यूशन है, इफ यू प्रिपेयर द सोल्यूशन एंड टेक इट सो मच टाइम फॉर टेकिंग द रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ व्हाट, व्हेन वी फ्लोरोमीटर रिक्वायर डायल्यूट सोल्यूशन. एक तो पहली चीज़ है कि दो चीज़ें याद रखना है, जस्ट रिमेंबर टू वर्ड, वी यूज द डायल्यूट सोल्यूशन एंड वी प्रिपेयर द फ्रेश सोल्यूशंस. उसी दो मीन्स हियर इज अ डायल्यूट सोल्यूशन एंड अनदर वन इज द फ्रेश सोल्यूशंस. Okay, so fluorimeter require dilute solution of a solute to obtain fluorescence, but this solution absorb into cell wall. So अब आपने क्या किया है कि बहुत सारे समय तक उसको वैसे रखा, तो क्या हो जाएगा, वो सेल वॉल की तरफ एब्जॉर्ब होने लगेगा एंड वी गेट द फॉल्टी रिजल्ट्स. सो सच अ केस वी वांट टू अवॉइड सच केस, सो व्हाट वी डू, द एब्जॉर्प्शन कैन बी अवॉइडेड बाय, हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कैन बी अवॉइडेड बाय प्रिपेयरिंग डायल्यूट सोल्यूशन. हमने क्या किया है, एक तो डायल्यूट सोल्यूशन हम तैयार करने लगेंगे एज अ सैंपल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेश सोल्यूशन एट अ टाइम ऑफ यूज. एब्जॉर्प्शन कैन बी अवॉइडेड बाय प्रिपेयरिंग डायल्यूट सोल्यूशन. हमने क्या किया है, एक तो सैंपल तैयार किया, कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल, उसको पहले डायल्यूट किया और उसको भी फ्रेश वाला सैंपल को इमीडिएटली डायल्यूट करके फिर हमने क्या किया है, उसका यूज किया है टेकिंग द रिजल्ट्स. सो दैट केस माइट बी अवॉइडेड और द एब्जॉर्प्शन कैन बी अवॉइडेड बाय preparing dilute solution and taking the fresh solution from concentrated one and make it dilute, so we avoid the adsorption. So these are the 12 different factor which affect the fluorescence. Now we move toward the next one, that is the quenching.
सो क्वेंचिंग इज नथिंग बट रेफर्स टू डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस। उसके अंदर क्या होता है, फ्लोरेसेंस डिक्रीज होने लगता है। एंड व्हाई दिस फ्लोरेसेंस डिक्रीज, fluorescence of the substance as a result in decrease in the sensitivity of constituent. So quenching refers to decrease in the fluorescence of a substance as a result of decrease in sensitivity of constituent. तो जो constituent की क्या हो जाएगी, sensitivity decrease हो जाएगी. So quenching can be due to, quenching होती क्यों है, can be due to either high concentration of solute or due to presence of specific functional groups और ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन का हमें पता है, फंक्शनल ग्रुप का भी हमें पता है, OH NH2 ग्रुप जो है और COH ग्रुप डिस्ट्रॉय करने लगता है तो, और ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, सो दैट वी हैव टू बी स्टडी। ओके, सो मेनली इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, उसमें 4 टाइप्स है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द केमिकल क्वेंचिंग, देन द कोल्यूशन क्वेंचिंग, then the self or concentrated quenching, and finally is the static quenching. So these are the 4 types of quenching. So first one is the chemical quenching. So they are of following types. There are mainly 3 types of chemical quenching: pH dependent quenching, oxygen dependent quenching, and quenching due to halides. A pH dependent, already we discussed, when aniline is exposed to excited state, aniline is exposed to excited state at 290 nanometers, it exhibit blue fluorescence. ये क्या करता है, exhibit blue fluorescence. If pH is between 5 to 13, okay, but pH कितनी चाहिए, aniline exposed excited state at 90 nanometer, it exhibit blue fluorescence, pH is between 5 to 30, 5 से 13 के बीच में अगर pH रहेगी तो क्या करेगा, blue fluorescence हमें देगा at 290 nanometer. At pH below 5 means acidic में रहेगा तो at pH below 5 it exists in cationic form, it exists in a cationic form and does not exhibit fluorescence in these forms. और वो एक तो cationic form positive ion में रहता है and does not exhibit the fluorescence in these forms. So that is the pH dependent quenching. Then oxygen dependent quenching. So in the case of oxygen dependent quenching, many organic compound in the presence of oxygen, हमने क्या किया है, we take different organic compounds in the presence of oxygen, उसको हमने dissolve कर लिया, ठीक है. So what going to happen, we already know, organic compound in presence of oxygen get excited from excited single state to triplet state and exhibit paramagnetism. वो क्या करते हैं, फास्फोरेंस नहीं देते हैं और फ्लोरेसेंस नहीं, दे गिव्स द पैरामैग्नेटिक, जनरली इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीजन fluorescence or oxygen excitation also called. So that is due to the oxygen presence of oxygen is there. Ab quenching is due to the halides also. If you are having a different halides, that also affect to this one. Okay, so whatever the iodine ion already discuss किया है कि iodine का हमने example लिया था. Iodine ion as an extremely effective quenchers, हमें पता है कि iodine ion is an extremely effective quencher. It may cause decrease in intensity of fluorescence. ये क्या करता है, decrease in intensity of fluorescence due to decrease in sensitization. उसकी sensitivity क्या करता है, ये बहुत decrease करने लगता है. So that is the case, means quenching due to the halides. Okay, another example is chlorine, bromine, iodine, everything comes under this one in the case of chemical quenching. Second one is the collusion quenching. Collusion name itself, high temperature of sample and presence of very low viscous sample. अब ऑलरेडी हमें पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और विस्कोसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने लगेगा और वो क्या करेगा, क्वेंचिंग कॉज करेगा. तो हाई टेम्परेचर ऑफ सैंपल, प्रेजेंस ऑफ वेरी लो विस्कस सैंपल कॉज इंक्रीज कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, देयर इज इंक्रीज इन द कोलिजन बिटवीन देम एंड रिजल्टिंग इन अ डीएक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स. उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो मॉलिक्यूल्स थे
वो क्या हो जाती है, डीएक्टिवेशन ऑफ एक्साइड मॉलिक्यूल, दिस कॉज डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंस, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका फ्लोरोसेंस डिक्रीज होने लगता है. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एज द collision quenching. Then third one is the self or also called as the concentrated quenching. We already know concentrated quenching relationship है between fluorescence and the concentration of dilute solutions. In concentrated solution linearity not seen. Why? Because concentrated solution absorb first and less concentrated solution फिर radiation जाने नहीं देगा. लेकिन वही अगर dilute solution रहेगा तो because of dilute solution what going to happen, there is a uniform distribution of the radiation, we get the proper fluorescence. So that is in the case of concentration quenching. So loss of vibration due to collision between atom of molecule of compound. Loss of vibration due to the collision between the atom molecule of compound. Emitted fluorescence radiation can be reabsorbed by the sample itself. Okay, emitted fluorescence radiation can be reabsorbed by the sample itself because of the higher concentrations. So that thing get possible in the case of self or concentrated quenching. Then next one is the static quenching. So in the case of static quenching, its points is the 4. I have written here 2, but is actually is a 4. Okay. So static quenching, nothing but the substance to be examined may forms a complex with quencher molecule. क्या कर रहे हैं हम, जो सब्सटेंस खुद स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिक सेल्फ ही कर लेते हैं. सब्सटेंस टू बी एग्जामिन may forms a complex with the quencher molecule. It inhibit excitation of the substance and hence the fluorescence. Okay, because of quencher molecule inhibit the excitation of substance, उसको excitation ही नहीं होने देता, inhibit ही कर लेता है, and hence the fluorescence, और उसके वजह से fluorescence को भी affect होने लगता है. So example, the fluorescent intensity of riboflavin is reduced. riboflavin हमने लिया है, is reduced. ये कम कब होता है, when it is complex with caffeine. कैफीन के साथ अगर हमने उसका लिया तो ये क्या करता है, रिड्यूस करने लग जाता है. तो these are all about the whatever the quenchings, and previously study about the what was the factor affecting the fluorescence. So thank you very much for your patience learning, and in the next lecture we discuss on to the instrumentation part, single spectrophotometer, double spectrophotometer, and whatever the application part is there. So thank you very much and happy learning.